کبھی سوچا ہے چھوٹے سے دانے میں اتنی طاقت ہو کہ وہ برا ارادہ رکھنے والے کو کبھی کامیاب نہ ہونے دے تو کیا ہوگا؟ اور اگر اس چھوٹے سے دانے کے پیچھے پورا جنگل پڑ جائے تو کیا اس کا مالک اسے بچا پائے گا؟ آج کی کہانی صرف جادوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے سچائی کی، لالچ کی اور بھروسے کی سب سے بڑی کسوٹی کی۔ تو یہ کہانی اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ آخر میں جو سچ سامنے آئے گا وہ کالو کوے کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ جنگل میں صبح کا وقت تھا اور جنگل کے تمام پرندے پیڑوں پر بیٹھے آہستہ آہستہ میٹھے میٹھے گیت گا رہے تھے، اور جنگل کے پرندے بہت سکون محسوس کر رہے تھے۔ اس جنگل کا نام تھا ہریالی جنگل۔ وہاں پر پرندے مل جل کر پیار سے رہتے، خوشی سے گیت گاتے۔ وہاں پر بہت اچھے اچھے پھول کھلے ہوئے تھے، بہت پیارے پیارے پودے لگے ہوئے تھے اور بہت روانی سے پانی بہہ رہا تھا۔ جنگل کے تمام پرندے اپنا اپنا دانہ ڈھونڈتے، ٹائم پر جب بھی بھوک لگتی دانہ پیٹ بھر کر کھایا کرتے، اور جب بھی فری ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ درختوں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے۔ اسی جنگل میں رہتی تھی رانو چڑیا۔ رانو چڑیا ہمیشہ کی طرح صبح سویرے اٹھ کر طوطے کے ساتھ مل کر جنگل سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لیے دانہ جمع کر رہی تھی۔ اسی جنگل میں رہتا تھا کالو کوا اور اس کی وائف گوری کوی۔ وہ دونوں کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے اور اپنے گھونسلے میں دن بھر سوتے، اور جب آنکھ کھلتی یا لڑائی کرنے لگتے یا جنگل کے پرندوں کو تنگ کرنے کا پلان بناتے۔ ان دونوں کا بس ایک ہی ماننا تھا کہ دماغ کا استعمال کر کے دوسرے پرندوں سے چیزیں چھین لیا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے جنگل کے زیادہ تر پرندے ان سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر میں اڑتے اڑتے رانو چڑیا جنگل کے بیچ پہنچ گئی تھی، اور وہاں پر وہ تھک کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے کہ وہیں اسے ایک بہت کمزور بوڑھی چڑیا ملتی ہے۔ وہ چڑیا بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کمزور تھی۔ اس کے پنکھوں میں کوئی جان نہ تھی، آنکھوں میں تھکان تھی، اور وہ بہت نڈھال اس درخت پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ رانو چڑیا اس بوڑھی چڑیا کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، ماں جی کیا بات ہے؟ آپ اتنی تھکی ہوئی اور بیمار پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بیٹی 2 دن ہو گئے، 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، مجھ سے اڑا نہیں جا رہا۔ رانو چڑیا اس بوڑھی چڑیا کی بات سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ بنا سوچے سمجھے جلدی سے اس بوڑھی چڑیا کو اپنے پاس موجود جمع دانہ جو اس نے صبح سے ابھی تک چھوٹے پرندوں کے لیے جمع کیا تھا، فٹ سے اس بوڑھی چڑیا کو دے دیتی ہے۔ یہ لیجئے ماں جی، آپ یہ دانہ کھا لیجئے، اور اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو میں آپ کے لیے پانی بھی لے آتی ہوں۔ وہ بوڑھی چڑیا مسکراتی ہے، بیٹی تمہیں اوپر والا اس کا اجر دے گا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، یہ دانہ تم نے مجھے دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بیٹی پھر وہ بوڑھی چڑیا اپنے پنکھ کے نیچے سے ایک چمکتا ہوا دانہ نکالتی ہے اور رانو چڑیا کو دیتے ہوئے کہتی ہے، بیٹی یہ دانہ تم اپنے پاس ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، یہ دانہ صرف نیک دل پرندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ دانہ سورج کی روشنی میں ایک الگ ہی چمک دے رہا تھا، اور رانو چڑیا وہ دانہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ بوڑھی چڑیا رانو چڑیا کو دانہ دینے کے بعد آہستہ آہستہ گھنے درختوں میں دھیرے دھیرے غائب ہو گئی، اور رانو چڑیا نے زیادہ کچھ نہیں سوچا اور اس دانے کو اپنی پوٹلی میں رکھ لیا۔ اور درخت کے پیچھے چھپا ایک پرندہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور وہ تھا کالو کوا۔ کالو کوا کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھی۔ ضرور یہ کوئی جادوئی دانہ ہے،
अगर ये दाना मेरे पास आ गया तो जंगल के तमाम परिंदे मेरे सामने झुक जाएंगे और जंगल पर मेरा राज होगा और मैं सबका मालिक बन जाऊंगा। हाँ, ये दाना कुछ भी करके मुझे हासिल करना होगा। और जल्दी से कालू कौवा उड़ता है और गोरी कवि के पास जाता है, उसे सारी बात बता देता है। उन दोनों ने मिलकर उसी वक्त फैसला कर लिया, वो दाना जो भी हो जाए, जैसे भी करना पड़े, हमारे पास होना चाहिए कालू जी। फिर क्या था, अगले ही दिन कालू कौवा अपना नाटक शुरू कर देता है और वो रानू चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और हाथों में फूल थे। फिर रानू चिड़िया को ऐसे कहता है, चिड़िया बहन, पुरानी बातें भूल जाओ, ये फूल हम तुम्हारे लिए लाए हैं। तुम हमारी पुरानी दोस्त हो और हमारी बहन हो। हम तुमसे नए सिरे से दोस्ती करना चाहते हैं। पुराने जो भी हमारे दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए और हमें नई दोस्ती का आगाज़ करना चाहिए। रानू चिड़िया कालू कौवे और गोरी कवि की ऐसे बातें सुनकर हैरान ज़रूर थी, लेकिन फिर वो सोचती है, इंसान हो या परिंदा, शायद बदल भी जाए अगर बदलना चाहे। रानू चिड़िया उन्हें बगैर कुछ गलत कहे उन्हें अपने घोंसले में बैठने के लिए कहती है। कालू कौवा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की तलाश में था और वो था जादुई दाना। कालू कौवे की नज़रें इधर उधर देख रही थीं, लेकिन रानू चिड़िया ने वो जादुई दाना बहुत संभाल कर अपनी पोटली में छुपा कर रखा हुआ था। कालू कौवे का मकसद तो सिर्फ जादुई दाना पाना था। वो रानू चिड़िया को ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके अपना मकसद ढूंढना चाह रहा था, लेकिन अपनी पूरी तलाश के बावजूद कालू कौवे को वो दाना नहीं मिलता। और फिर जाते वक्त वो धीरे से गोरी कवि से कहता है, पहली साजिश तो नाकाम रही, अब हम अपनी अगली चाल चलेंगे। और ऐसे कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। अगली शाम को कालू कौवा और गोरी कवि फिर से एक नई चाल चलने का इरादा करते हैं। वो पूरे जंगल में ये अफवाह फैला देते हैं कि जंगल में किसी परिंदे के पास एक जादुई दाना है और जिस परिंदे ने वो जादुई दाना पा लिया वो जंगल का सबसे ताकतवर परिंदा बन जाएगा। ये अफवाह किसने फैलाई थी? जी हाँ, बिल्कुल कालू कौवे और गोरी कवि ने। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के तमाम परिंदे रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आने लगे और हर परिंदा रानू चिड़िया से यही सवाल करता कि क्या रानू चिड़िया, तुम्हारे पास कोई जादुई दाना है? क्या कोई जादुई दाना तुमने अपने पास छुपा रखा है? रानू चिड़िया हैरान थी और वो यही सोच रही थी कि अचानक ये सब कैसे हो गया। और ये सब खिड़की से बाहर खड़ा कालू कौवा देख रहा था और वो ज़ोर से बोला, अगर तुम्हारे पास कोई जादुई चीज़ नहीं है तो छुपा क्यों रही हो? तुम सामने क्यों नहीं ला रही? क्यों छुपा रही हो सब परिंदों से? और परिंदों के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शक पैदा होने लगा। उस दिन रानू चिड़िया को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि कभी कभी झूठ भी सच से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। उस रात रानू चिड़िया बहुत उदास थी और उसने चांद की तरफ देखते हुए ऐसे कहा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और ना ही किसी के साथ बुरा किया। हमेशा सच बोलने की कोशिश की और परिंदों की मदद की, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? फिर रानू चिड़िया की पोटली में मौजूद वो दाना अचानक से चमका। रानू चिड़िया हैरान रह गई और उसने जल्दी से वो दाना पोटली से बाहर निकाला और देखा, लेकिन उस वक्त वो दाना बिल्कुल शांत था और ऐसा महसूस हो रहा था कि दाने में कोई चमक नहीं है। रानू चिड़िया ने यही समझा कि ये शायद मेरा वहम है, लेकिन उसे ये मालूम ना था कि जंगल में मौजूद एक बड़े से दरख्त की डाल पर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा है। अब कालू कौवा ये वाकई यकीन करने लगा था कि रानू चिड़िया के पास एक जादुई दाना है। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है।
रानू चिड़िया के पास वाकई एक जादुई दाना है। अब चाहे जो भी हो जाए, कल तक ये दाना मेरे पास होगा। अब कालू कौवे की आंखों में सिर्फ लालच नहीं थी, बल्कि पागलपन था, और वो चाहे जो भी करना पड़े, कालू कौवा रानू चिड़िया से वो दाना लेकर ही रहना चाह रहा था। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ कालू कौवा भी अपनी नई चाल चलने के लिए तैयार बैठा था। उसने सुबह सुबह उठते ही गोरी कवि से धीरे से कहा, सुनो गोरी, रानू चिड़िया का वो दाना आज रात चुराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर रानू चिड़िया वो दाना खुद ही हमें दे दे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गोरी कवि हैरान थी, लेकिन कालू ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद हमें ये दाना कैसे देगी? कालू कौवा हंस पड़ा। हा 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 हा। गोरी, कभी कभार झूठ और डर मिलकर बड़े से बड़े दिल वाले को भी हिला कर रख देते हैं। कालू कौवे ने एक और अफवाह पूरे जंगल में फैला दी। जंगल में एक ऐसा जादुई दाना है, वो जिसके घोंसले में होगा उस पर एक बड़ी मुसीबत आएगी। जंगल के तमाम परिंदे डर गए। रानू चिड़िया से हर परिंदा अलग सवाल करने लगा। कोई परिंदा कहता कि हमारे बच्चों की हमें फिक्र है, और कोई कहता कि रानू चिड़िया हमारी जान जा सकती है। रानू चिड़िया बहुत हैरान थी, और वो यही सोच रही थी कि आखिर कोई परिंदा इतनी जल्दी किसी अफवाह पर कैसे यकीन कर सकता है। रानू चिड़िया परेशान होकर आसमान की तरफ देखती है। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, और अगर मेरी नीयत साफ है तो तू मुझे सही रास्ता दिखा। तभी रानू चिड़िया के सामने वो बूढ़ी चिड़िया फिर से आ जाती है, और रानू चिड़िया उससे पूछती है, माँ जी, क्या वो दाना जादुई है? आप मेरी मदद कीजिए, तमाम परिंदे मुझ पर शक कर रहे हैं। वो बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई। रानू बेटी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये सब वक्ती है, गुज़र जाएगा। तुम एक सच्ची चिड़िया हो, और सच की जीत आखिर में ज़रूर होती है। ये एक आजमाइश है, किसी बुरे परिंदे को सबक सिखाने के लिए। रानू चिड़िया दोबारा पूछती है, क्या वो दाना जादुई है जो आपने मुझे दिया था? माँ जी बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराती है, बेटी, ये बात तुम्हें वक्त ही बताएगा, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे वो बूढ़ी चिड़िया दोबारा आहिस्ता आहिस्ता घने जंगलों में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवे ने अपनी सबसे बड़ी और आखिरी चाल चल दी थी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो जंगल के राजा उल्लू के पास जाता है और उससे कहता है कि रानू चिड़िया के पास एक जादुई खजाना है। अगर रानू चिड़िया ने उसका इस्तेमाल किया तो पूरा जंगल रानू चिड़िया के कब्जे में आ जाएगा। और ऐसे सब कुछ रानू चिड़िया का आगे झुक जाएगा। उल्लू बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जल्दी से परिंदों को अपने दरबार में बुलाता है। वहाँ पर रानू चिड़िया भी आ गई थी, और उल्लू जल्दी से रानू चिड़िया से पूछता है, रानू चिड़िया, हमने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई खजाना है। तुम अभी और इसी वक्त वो खजाना हमारे हवाले कर दो। रानू चिड़िया हैरान थी, क्योंकि उसके पास उसकी सोच के मुताबिक कोई भी खजाना नहीं था और ना ही कोई कीमती चीज़। वो परेशान हो गई। मेरे पास कोई कीमती खजाना नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ मेरा दाना ही होता है, और वो भी मैं जो दूसरे परिंदों की मदद करने के बाद बचता है वही रखती हूँ। मेरे पास कोई दाना नहीं है, राजा जी मुझ पर रहम कीजिए। लेकिन कालू कौवा ज़ोर से बोलता है और रानू चिड़िया की कमज़ोर आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। अच्छा, कमज़ोर चिड़िया और झूठी चिड़िया हो तुम। अगर तुम सच बोल रही हो तो तुमने अपनी पोटली में क्यों दाना छुपा कर रखा है?
रानू चिड़िया अपनी पोटली में मौजूद संभाल कर और छुपा कर रखा हुआ दाना बाहर निकालती है। मेरे पास ये दाना है और ये दाना मुझे एक मुसाफिर और बुजुर्ग चिड़िया ने दिया था। वह भूखी थी, मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे बदले में ये दाना दिया। ये तो कभी मेरे काम नहीं आया, बस मैंने इसे छुपा कर रखा हुआ है। रानू चिड़िया ऐसे बातें कर रही थी कि कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के ऊपर झपटता है और वो दाना छीनकर उड़ने लगता है। तो कालू कौवे का अपने ऊपर ही कोई इख्तियार ना रहा था। कभी वो अपना सर दीवार में मार रहा था, कभी उड़ते उड़ते किसी दीवार में लगता और कभी अपना पंख ही अपने चेहरे पर मारता। ऐसे कालू कौवे को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और वो कंट्रोल से बाहर हो गया था और कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता कि तभी गोरी कौवी कालू कौवे को रोकने की कोशिश करती है और जैसे ही वो दाने को हाथ लगाती है तो वो भी कालू कौवे के साथ मिलकर वैसे ही उल्टी हरकतें करने लगती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी चिड़िया दोबारा आती है। हा 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 हा, कालू कौवे, देख लिया तुमने खजाना। दरअसल खजाना कोई भी जादुई चीज़ से हासिल नहीं होता। इंसान या परिंदे की नीयत ही उसके दिमाग को चलाती है। अगर नीयत में लालच हो तो दिमाग हर चीज़ को लालच की नज़र से देखता है। इसलिए तुम्हें ये दाना भी खजाना लग रहा था, हालांकि ये सिर्फ दाना है। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था और वो रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दें चिड़िया आपी, रानू आपी, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया और आपके खिलाफ़ कितनी साजिशें की हैं। मैंने सबक सीख लिया है। ये सब मेरे बुरे करने का अंजाम है। मुझे माफ़ कीजिए। रानू चिड़िया बहुत अच्छी और नरम दिल थी। वो कभी भी किसी से बदला लेने के बारे में नहीं सोचती थी। आज भी रानू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो कालू कौवे को बिना कोई सज़ा दिए माफ़ कर देती है। जंगल के तमाम परिंदे फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगे थे। तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई थी। रानू चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती फिर से हो गई थी। कालू कौवा अब पहले से सुधर गया था और अपना दाना खुद ढूंढा करता था और गोरी कौवी ने भी साजिशें करना छोड़ दी थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो एक और ऐसी इमोशनल स्टोरी देखने के लिए एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और देखिए रानू चिड़िया और कालू कौवे की एक और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।